back once again to the second chapter of English literature. Students, sometimes we feel that I wish I could fly in the air. हवाई जहाज को देखते हैं तो मन में एक आशा जागती है कि काश हमारे भी पंख होते, हम भी आसमान में उड़ सकते और ऊपर विचरण कर सकते। ऐसा ही पहले भी कुछ लोग सोचा करते थे, लेकिन इस सोच को हकीकत में बदला था एक रशियन एस्ट्रोनॉट ने, यूरी गार्गिन, and that was on 12th of April 1961. So today we are going to read about Yuri Gagarin, the first man in the space, his experience in the space, and what he said about the earth when he looked from the space. ये पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में, अंतरिक्ष में गए थे 1961 में, और ये उनका अनुभव है कि वहां से उन्होंने क्या क्या नजारा देखा, पृथ्वी उन्हें कैसे लगी, क्या कहा उन्होंने देखने के बाद। So let us read this chapter number 2, Yuri Gagarin. On April 12, 1961, Major Yuri Gagarin became the first man ever to venture into space. Venture means to go, to take a risk and go. Space means antariksh. He did not know for certain beforehand that he was to be chosen. Beforehand means earlier. उनको तो ये पता भी नहीं था कि वो उसमें जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनको बताया नहीं गया था. The Russians and the 3 possible candidates ready, and although Gagarin was first on the list, the choice was not definitely made until the early morning of April 12th. 3 और लोग का नाम था उस लिस्ट में. हाँ, ऑफ कोर्स यूरी गैगरिन का सबसे ऊपर नाम था, लेकिन 12 अप्रैल के सुबह ही उन्हें पता चला कि उन्हें स्पेस में जाना होगा. All candidates had undergone strenuous training period. Strenuous means difficult. Strenuous means difficult. Training period. जब भी अंतरिक्ष में जाना होता है तो ट्रेनिंग ली जाती है और बहुत कड़ा परीक्षण था उनका. They had spent long sessions in the pressure chamber and the centrifuge. Pressure chamber में उनको परीक्षण करना था कि कैसे अंडर प्रेशर वो स्पेस में रह पाएंगे. Endure means tolerated. Violent and extremes of sensation. Extreme मतलब बिल्कुल excess, बहुत ज्यादा. Sensation means feelings. उनको हर फीलिंग्स को, एक्सेस फीलिंग्स को अनुभव करना था. जैसे a peaceful sleep for instance. For instance means for example, बिल्कुल शांत से सोए हुए हैं और अचानक शोर शराबा होता है, उनको जागना पड़ता है. Suddenly followed by, suddenly means अचानक, by an hour of an ear shattering noise. Ear shattering means कान को बिल्कुल फाड़ने वाला, बिल्कुल बहुत तेज. ear shattering, very loud. Recorded on tape and amplified. Amplified means the volume was increased. उस आवाज की वॉल्यूम इतनी तेज कर देगी कि लगा कि बिल्कुल अब कान का पर्दा खत्म हो जाएगा. So enormous loudspeaker. Enormous means very big. In an enclosed room. Enclosed means closed. और ये सब कुछ एक बंद कमरे में होता था. तो ये था उनका ट्रेनिंग. लेकिन और भी कुछ ट्रेनिंग होता था. Perhaps the worst of the ordeals means the exercise or routine work, was to be shut in a darkened room for long uncertain period. Uncertain means indefinite. पता नहीं कब खत्म होगा. अब आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कि आपको अंधेरे रूम में बंद कर दिया जाता है. कितने लोग जैसे ही बत्ती गुम होती है, मम्मी मम्मी टॉर्च लाइट ये मांगने लगते हैं, और इनको घंटों न जाने कब तक, कोई निश्चित नहीं, इन्हें घंटों अंधेरे रूम में बंद रह के परीक्षण करना होता था कि वो अंधेरे में रह पाते हैं कि नहीं. इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. सॉलिटरी मीन्स लोनली, अकेला, बिल्कुल अकेले. कन्फाइनमेंट मतलब क्लोज्ड कैंपस, बिल्कुल बंद कमरे में. इन कंप्लीट साइलेंस. Gagarin himself has described this experience. There was no sound,
Not even the slightest rustle. Rustle means sound of anything moving. Sound of anything moving. Rustle. No movement of air. Nothing. It was uncanny and unnerving. Unnerving means making it nervous. कोई भी आते हैं नर्वस हो जाए, भाई कोई नहीं, कहीं आस पास कुछ नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है. ऐसी अनुभव थी यूरी गैगरिन की जब वो प्रैक्टिस में थे, ट्रेनिंग पीरियड में था. He would shut his eyes and imagine himself in a space cabin. आंखें बंद करके वो इमेजिन करते थे, कल्पना करते थे कि वो स्पेस के केबिन में बंद हैं. Looking at the world passing beneath him, or sometimes he would recite half-remembered poetry to himself. और कभी कभी वो अपनी पोइट्री को जो बचपन में सीखा था, याद किया था, वो मन ही मन याद करते थे. ये ऐसे बीतता था उनका अंधेरे में. Then came the parachute training, और थर्ड था पैराशूट से जंप लगाना. Gagarin made 40 parachute jumps of gradually increasing difficulty. एक के बाद एक 40 ट्रेनिंग हुई और हर बार मुश्किल समय से कूदना था. One of the most interesting of the training experience was the method of providing experience of weightlessness. Weightlessness क्या होता है? जब आप बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं बिना वेट के. आपने देखा होगा चांद पे लोग लगता है तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं. वो भी उनको ट्रेनिंग का हिस्सा था. In the early stages, the express lift of the great Moscow University building was used from the 28th floor to the bottom, allowed a drop of 500 feet. और इसके लिए क्या किया उन्होंने? मॉस्को यूनिवर्सिटी के 28वें फ्लोर, 28 फ्लोर जो लिफ्ट है उस पे से उनको जंप कराया गया. सोचिए, एक्सपीरियंस के लिए. At a certain high speed, the passenger would find himself suspended between the floor and the ceiling of the lift without support. लगता था कि वो ना नीचे फ्लोर है ना सीलिंग है, बीच में टंगे हुए हैं और ऊपर से वो नीचे गिर रहे हैं. This was a practice of weightlessness. This was a convenient and an inexpensive way of reproducing zero gravity. जहां जीरो ग्रेविटी होता है तो आप तैरने लगते रहते, चांद पे हम लोग तैरते हैं, जीरो ग्रेविटी. उसका एक्सपीरियंस के लिए उनको उस लिफ्ट में से जंप कराना पड़ता था 500 फीट डाउन. स्पेशल एयर ब्रेक्स प्रिवेंटेड द लिफ्ट फ्रॉम क्रैशिंग एज इट रीच टू द बॉटम. हाँ, अब जंप तो लगा दिया लेकिन उसमें एयर ब्रेक्स होता था कि उतनी तेजी से वो नीचे लिफ्ट उतर रहा है तो कैसे उसे रोका जाए ताकि वो क्रैश ना कर जाए, दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए. On the morning of April 12, Gagarin rose at 5:30. He was zipped into his complicated space suit. 12 अप्रैल को वो तैयार हुए, सुबह 5:30 बजे जिप लगाया, ब्लू सूट पहना और उसका फिर ऑरेंज सूट, 3 लेयर ऑफ सूट. सोच लीजिए. And then an Air Force bus drove him to the launching site in company with the various helpers. और फिर वहां लॉन्चिंग जहां से रॉकेट उड़ता है वहां पहुंचाया गया और भी हेल्पर्स थे वहां पे. द गैंट्री लिफ्ट टुक हिम अप 100 फीट. आपने कभी देखा होगा स्पेस में रॉकेट उड़ता है कि सीधी लिफ्ट होता है जिस पे ऊपर जाते हैं और सबसे ऊपर 100 फीट पहुंचते केबिन का डोर आता है और उसके अंदर वो जाते हैं जहां पर नोज होता है रॉकेट का. कभी देखिएगा व्हेन इट इज बीन डन देयर. So 100 feet to the nose of the rocket, and then he entered the cabin, which was named as Vostok. उस केबिन का नाम वॉस्टॉक था. With a wave to those below, और सबको उन्होंने इशारा किया वहीं से. While he sat in the cabin, the technicians swarmed around the rocket on their pre-flight task. जब वो बैठ गए तो सभी टेक्नीशियंस अपने अपने कंप्यूटर पर बैठ गए. A careful check of all the instruments and safety devices took 90 minutes. So within 90 minutes, 1 hour 30 minutes, सभी इंस्ट्रूमेंट को चेक किया गया कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है. And finally, Gagarin was told that all was ready. सब कुछ तैयार है. Right, let us go on up. These were the last words before the flight. उड़ने से पहले उसने ही कहा था. चलो, let's go up now. At 9:07, सुबह 9:07 पर, Moscow time, the great rocket lifted in air. By the way, ये मॉस्को है कहां? रशिया में है. मैप में देखेंगे रशिया, सोवियत यूनियन पहले कहा जाता था, वहां मॉस्को है. तो वहां से उड़ा. उस वक्त 9:07 थे सुबह के. वहां
It lifted in the air with a mighty roar. Mighty roar. Roar means noise. बहुत शोर हुआ, बहुत आवाज से रॉकेट ऊपर उड़ने लगा. In a cloud of steam, it rose smoothly at first and then quickened to fantastic speed. पहले स्मूथली बढ़ा और फिर बहुत तेज गति से फैंटास्टिक स्पीड में बढ़ने लगा. At its peak, the craft reached 17,500 miles an hour. 17,500 miles एक घंटे में चलने लगा, उतना स्पीड में था. At the height of about 190 miles above the earth. 4 minutes after launching, the first and second stages of rockets had burned out and fallen away. The spaceship's trajectory altered or was changed as it turned to go into orbit. Parallel with the Earth's surface, आप कभी देखेंगे कि उसमें रॉकेट्स वो अपने आप खुल के गिर जाते हैं ताकि और वो हल्का हो और ऊपर जा सके. This you can see whenever there is a spaceship launched. Gagarin pulled himself towards the window. वो खिड़की की तरफ आके झांकते हैं और देखते क्या है. उन्होंने क्या जवाब दिया? I can see the earth in a haze. कुछ धुंधला. haze मतलब धुंधला, hazy, unclear. I am feeling fine. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. This was the thing. A moment later he added, it looks beautiful. और नीचे बहुत सुंदर सा लगता है. This was the first comment which he gave. He loosened the straps. Straps कहते हैं बेल्ट. जो बेल्ट बांधा था उसको उन्होंने ढीला किया. तो his couch मतलब बेड, BED बेड जिससे हम लोग सोते हैं. His body, weightless in space, rose slightly above the seat. और चूंकि वो weightless जगह पहुंच रहे थे, वहां बिल्कुल जीरो ग्रेविटी था, वो बिल्कुल लग रहा तैर रहे हैं हवा में. Though still held by loose straps, he was in fact floating in his cabin. और वो जबकि हालांकि straps बंधे हुए थे, फिर वो केबिन में तैर रहे थे. और इस ढंग से उनकी यात्रा शुरू होती है, द फर्स्ट मैन इन द स्पेस. और हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस यात्रा के दरमियान उनके और क्या क्या अनुभव थे. व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द जर्नी? वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड टुमारो. गुड बाय.